Okay, so the next phylum, that is phylum Aschelminthus, also called Nemathelminthus, okay, also called Nematoda. ठीक है, ये तीन नाम है एक ही फाइलम के। अभी नेमाटोड्स का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, these animals are commonly known as roundworms. इन एनिमल्स को कॉमनली बोलते हैं roundworms. Okay, एकदम। now whenever you say the word worm, so you imagine a cylindrical structure. सर बोलो। प्लेथियलमेंथेसिस था, उसके सेगमेंटेशन क्या थी, लाइक सेगमेंटेड बॉडी Platyhelminthes थी या में no नहीं थी? segmentation, non-segmented. Up to Aschelminthus, no animal is segmented. सेगमेंटेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है इसके नेक्स्ट फाइलम में, एनिलिडा में। ओके, और सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल। प्लेटीहेल्मिन्थस में बायलैटरल सिमेट्री, बिकॉज इट्स अ वर्म, सिलिंड्रिकल और फ्लैट स्ट्रक्चर है ना, तो बायलैटरल सिमेट्री। ओके, सो हियर इन एस्केल और सूडोसेलोमेट, राइट? स्यूडोसिलोमेट बोल सकते हैं, यस, सूडोसेलोमेट। या। So yeah, in case of platyhelminthes you can actually say असिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट दोनों बोल देना, बट ट्रू सिलोम नहीं होते। Okay, so coming to Aschelminthus, these animals are commonly known as roundworms. ठीक है, एकदम ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होता है, सिलिंड्रिकल, एंड दे आर अनसेगमेंटेड, वेरी स्मूथ अपीयरेंस, elongated and cylindrical worms. And इनका जो यूनिक पॉइंट है Aschelminthus का, it is like they have separate sexes. The male worm and the female worm are different. In case of Aschelminthus, male worm और female worm different है, उसको बोलते हैं sexual dimorphism. Okay, sexual dimorphism का मतलब है you can distinguish between a male worm and a female worm by its appearance. I'll show them pictures, you'll understand. ठीक है, and generally in case of these worms ऐसे हो जाते हैं कि male worm is generally smaller in size than the female worms. Okay, and इनके शरीर पे there is a tough protective covering or the cuticle for their own protection, nothing else. ठीक है, now here ये ऐसा फाइलम है जहां पर दे हैव अ प्रॉपर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. So there is one mouth and there is one anus on opposite sides. So from one side they will eat the food, then it will pass through the digestive system, it will get digested and waste matter will be out through the anus. तो अभी तक बाकी जो हमने फाइलम देखा उसमें ऐसा कोई बॉडी प्लान नहीं था. This is the first phylum where it has got a complete digestive tract. You cannot call it as a complete digestive system because उसमें लीवर पैनक्रिया जैसे ऑर्गन्स कुछ नहीं होते, बट दे हैव अ प्रॉपर कंप्लीट ट्रैक्ट with proper two openings. Okay, so again here they are free living, majority of the worms are like free living and some of them can be even parasites. So humans में, plants में, animals में parasite बन के भी रह सकते हो. Okay, and there are three morphological forms, उसका egg, उसका larva and उसका adult. Three different stages of life cycle also you can say, metamorphotic stages बोलते हैं. ओके, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, कॉमनली इनको बोलते हैं राउंड वर्म्स. ओके, दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, दे हैव बोथ ओरल दैट इज माउथ एंड एनल ओपनिंग्स. ओके, एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, एंड लाइफ के तीन स्टेजेस दैट इज एग, लार्वे एंड एडल्ट फॉर्म. ठीक है, इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल वर्म्स. ठीक है, तो सी दिस, this is an example called ascaris. Okay, you can see ये जो है अंदर वाला ये मेल ascaris है एंड बाहर वाला फीमेल ascaris. उसका सेक्शन लेके उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया हुआ है, तो यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट लुकिंग एट द एनिमल कैन यू मेक आउट द डिफरेंस मेल और फीमेल ascaris के बीच में? यस एवरीवन, बी ऑन द स्क्रीन एवरीवन. क्या हो जाता है बीच बीच में? यस. Okay, male and the female ascaris, you are able to see them, differentiate between them.
Okay, female is longer than the male. Okay, and the male worms, they have a what you can say as a coiled structure towards the tail region. Okay, female में ऐसा नहीं है देखो. Okay, you can see one mouth region at the anterior end and anus towards the posterior end. And males में देखो testes है यहाँ पर. Okay, which produces the sperms. Sperm duct भी है. Advanced feature, right? And females में you can see ovaries here, uterus is over here, and even the vulva is here. Right? So ये सब distinguishing features है male और female के बीच में. So these worms are able to show this something called sexual dimorphism. So in the exam, when you are writing a note on Ascalminthus, so sexual dimorphism वाला point नहीं miss करना. ठीक है? And some of them can be even parasites. Okay, जैसे ये वाला जो है center पे, this one is a worm called Wuchereria. इसका scientific name Wuchereria है, Wuchereria bancrofti, but commonly it is known as the filaria worm. It causes a disease in human beings. It is called as a sleeping sickness. Okay, Wuchereria or filaria worm. ठीक है? Similarly, ये देखो Ascaris. इसको भी commonly round worm बोलते हैं. You can see the male and the female Ascaris. कितना different है देखो. Male एकदम छोटा सा, पतला सा, and female is मोटा सा, लंबा सा. Okay, so very इसी का section लेकर ये diagram दिया हुआ है Ascaris का. Okay, Ascaris can cause human beings में commonly हम लोग बोलते हैं food poisoning. What is food poisoning? What do you mean by food poisoning? When it can happen? When we eat spoiled food. Consuming spoiled food. Spoiled food या unhygienic या unclean food. Contaminated. Contaminated food. ये जो Ascaris है ना, इसके भी eggs हो सकते हैं nails के अंदर. Okay, and that can go inside and it इसके वजह से जो food poisoning होता है, that disease is known as Ascariasis. That disease is known as Ascariasis. I'll write the name here. Okay, Ascariasis करके disease होता है. It's a type of food poisoning which is caused because of Ascaris worm. But sir, Yeah. बोल. ये डिजीज मतलब ये वर्म स्पॉइल होने के बाद फूड में ग्रो होता है कि पहले से ही किधर से आ जाता है? कहीं से भी आ मतलब सकता है. इसके eggs आ सकते हैं कहीं से भी. ओके, इसलिए अनहाइजीनिक कंडीशन में इसके एग्स कहीं पर भी हो सकते हैं. और इसके एग्स को हैच करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए वो स्पॉइल्ड फूड में रहेगा. सो इट कैन जर्मिनेट. एंड फिलेरिया वर्म की वजह से जो डिसीज होता है उसको बोलते हैं फिलेरियासिस. ये मैंने लिखा है यहाँ पर. दैट इज कॉल्ड एज फिलेरियासिस. इसीलिए हाइजीनिक कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस करके वर्म का नाम है. उसके एग्स जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने अंदर कंज्यूम कर सकते हैं. एंड यू कैन इमेजिन कि इनके जो एग्स होते हैं, ये देखा हमने पहले टेप वर्म देखा, इनके एग्स इतने मजबूत होते हैं कि इट विल पास थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बट इट वोंट गेट डाइजेस्टेड. उसके एग का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एसिड्स उस पर एक्ट नहीं करते. एंड दैट्स व्हाई दे कैन रीच ऑल द वे टू द इंटेस्टाइन एंड कॉज प्रॉब्लम्स. अदरवाइज अपने जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल लाइक दिस. बट ये नहीं होते. Many of the eggs are just saved and that's why they hatch inside when they reach the intestine. Okay, वो इतने अडेप्ट हो चुके हैं अपने अंदर. ओके, एंड ये वो जो है इसको बोलते हैं हुक वर्म. सर, या बोलो. जर्मिनल लेयर्स कितने होते हैं? That depends. It's a very vague question actually. Nematode. अच्छा, ओके, हियर यू आर आस्किंग. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक. Okay. प्लैटीहेलमिन्थस से आगे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक. अभी all are ट्रिप्लोब्लास्टिक now. Okay.
तो हियर दिस इज अनदर एग्जांपल, इसको बोलते हैं हुक वर्म। ये एकदम एक हुक की तरह अटैच हो जाते हैं। सी वेयर इट इज गेटिंग अटैच, स्टमक इंटेस्टाइन के जंक्शन पे, डुओडेनम जिसको बोलते हैं। दिस इज वेयर द हुक वर्म कैन गेट अटैच, एंड साइलोस्टोमा करके नाम है। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेमाटोडा अगेन। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल देखा, राउंड वर्म, एस्केरिस, ओके, फिलेरिया वर्म एंड हुक वर्म। ठीक है, अंडरस्टूड दिस एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? दीक्षा, मृणाल, प्राची, प्रणव, ओके। सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, एंड एग्जांपल्स भी अच्छे से जितना हो सके उतना याद रखना है। वंस दिस लेसन विल गेट ओवर, तो मैं एक ऐसा टेस्ट रखूंगा वेर इट विल बी ओनली एग्जांपल्स। ओके, कि आई विल गिव द नेम ऑफ द एनिमल, यू हैव टू टेल मी बिलोंग्स टू विच ग्रुप। ऐसे करके एक एग्जांपल का टेस्ट रखूंगा मैं। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड यूनिक पॉइंट सबके याद रखना है। इस लेसन का जब टेस्ट आएगा तो आई विल कीप अ टेस्ट वेयर आई विल इंक्लूड ओनली शॉर्ट नोट्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऐसे क्वेश्चन रखूंगा मैं। ठीक है, ओके, या नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, अच्छा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन एस्टेलमेंथस, इसमें एक और इंटरेस्टिंग एनिमल है, आई वुड लाइक टू शो। जस्ट अ मिनट, मैं नेट पे दिखाता हूँ डायरेक्टली। there is a worm which is called as Bonellia. मैं next time इसका picture डालता हूँ, I'll just tell you now. There is a worm called as Bonellia, Bonellia, Bonellia worm करके बोलते हैं। This is a very unique example of Astelmanthus. The reason is very high degree of sexual dimorphism. उसमें जब जो फीमेल होते हैं, the female can grow up to a length of around 88 centimeter, sorry, 8 centimeter it can grow. And when it lays the eggs, एंड जब वो एग्स हैच करते हैं बोनेलिया में, तो देर आर सम एग्स दैट रिमेन आउटसाइड। ओके, सॉरी, देर आर सम एग्स जिसमें से हैच होते जो वर्म्स आते हैं ना, वो बाहर रह जाते हैं। तो जो बाहर रह जाते हैं वो फीमेल्स बनते हैं, एंड देर आर सम वर्म्स दैट हैच आउट ऑफ द एग्स, ओके, एंड दे विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल अगेन, एंड वो अंदर जाके सर्वाइव करेंगे, वो बनते हैं मेल्स। कि वो जहां ग्रो करते हैं वो डिसाइड करेगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। And the male worm is hardly about 8 millimeter, and female worm is about 8 centimeter. Imagine the difference. Environment decides कि वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। That is Bonellia worm. Bonellia viridis करके नाम है उसका। ओके, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज वेरी ग्रेट, कि मतलब मेल इतना सा, उसका लाइफ में एक ही काम है, स्पर्म्स देना है ताकि फर्टिलाइज हो और एक बने बस। तो फीमेल के अंदर ही रहते हैं वो। ओके, एंड द फीमेल वर्म इज आउटसाइड, 8 सेंटीमीटर डोमिनेटिंग वन। So there can be this kind of sexual dimorphism also. ठीक है, तो अभी पूरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, स्पेशली एनिमल वर्ल्ड में, यू विल सी नाउ कि फीमेल्स आर मोर डोमिनेटिंग देन द मेल्स। ओके, जैसे आगे आगे बड़े एनिमल्स के देखेंगे ना, बर्ड्स में, मैमल्स में, द थिंग्स आर वेरी मोर इंटरेस्टिंग। ओके, आई विल टेल यू मोर एग्जांपल जहाँ पे पता चलेगा कि फीमेल्स कभी कभी कितने क्रूर हो सकते हैं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर एनिमल्स। ठीक है, we'll do one more phylum for now, that is phylum Annelida, and then we can stop for today. ठीक है, phylum Annelida जो है, these are commonly called as ringworms. Okay, इसका नाम कैसे पड़ा है? Annelida has come from the word annulus. The word Annelida has come from the word annulus. Annulus का मतलब है ring. Annulus means rings. तो इनके बॉडी पर, अर्थवर्म का जो फोटो दिखाया था मैंने, उसके शरीर पे पूरे रिंग्स होते हैं। ओके, सो दोज रिंग्स गिव राइज टू दिस स्ट्रक्चर, इसलिए इनको रिंग वर्म्स करके बोलते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट फाइलम व्हिच हैज गॉट अ सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेशन पहले फाइलम तक नहीं था बिल्कुल।
दिस इज द फर्स्ट फाइलम वेयर देयर इज सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म करके जो हमने देखा था, ठीक है। सो दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो एन्युलस का मतलब है रिंग, एंड इट इज वर्मी फॉर्म, मतलब वर्म लाइक स्ट्रक्चर, बाकी सब कुछ सेम है, सिलिंड्रिकल बॉडी है, ओके, इनर माउथ एंड एनस ऑन वन साइड, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, ओके, एंड इसमें भी पैरासाइटिक फॉर्म भी होते हैं थोड़े, फ्री लिविंग भी है, पैरासाइटिक भी है, ओके, एंड द बॉडी वॉल इज मस्क्यूलर। अर्थवर्म को मूव करते हुए देखें, दीवारों पे, टाइल्स पे जब वो चढ़ते हैं तो एकदम ऐसे स्मूथ तरीके से मूव करते हैं, हैव यू सीन दैट, है ना। तो उसके हाथ पैर कुछ नहीं Yes. होते, बट स्टिल इट मूव्स बिकॉज इट हैज गॉट दीज बॉडी मसल्स। सांप का मिनी वर्जन है ना वो, इट इज अ मिनी वर्जन ऑफ अ स्नेक, राइट। तो बॉडी मसल्स के थ्रू मूव करता है वो, एंड दीज एनिमल्स हैव अ प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नाउ। इनके शरीर में खून होता है, नॉट लाइक अस, दे डोंट हैव हेमोग्लोबिन एंड ऑल, okay, but it has got some body fluids which can circulate within the body, okay, तो circulatory system is there, okay, nervous system is present, तो एक प्रिमिटिव सा ब्रेन है जिसको सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन करके बोलते हैं, ओके, देन सर्कम इसोफेजियल रिंग इन द नेक रीजन, एंड देयर इज अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ओके, नर्व कॉर्ड जो है इट इज वेंट्रल इन पोजिशन, ठीक है। एंड एक्सक्रीशन के लिए पहले वाले में हमने देखा था फ्लेम सेल्स, यहाँ पर दे आर मोर स्लाइटली एडवांस्ड सेल्स जिनको बोलते हैं नेफ्रीडिया। तो एनिलिडा में एक्सक्रीशन के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है दे आर नोन एज नेफ्रीडिया, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, अंडरस्टूड दिस। एंड इसमें अर्थवर्म जैसा जो एनिमल है दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, मतलब बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल इन द सेम वर्म, ओके, पहले वाले में यूनिसेक्सुअल था राउंड वर्म्स में, बट हियर इट इज हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। एंड वेयर आर अर्थवर्म्स फाउंड, वेयर डू यू फाइंड अर्थवर्म्स, नाम में ही उसका आंसर है, अर्थवर्म कहाँ मिलते हैं, Earth. Inside the earth. यस, इन द सॉइल, अर्थ मतलब सॉइल, और अर्थवर्म्स क्या खाते हैं, सॉइल खाते हैं, इसलिए अर्थवर्म्स को बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, यू आर अवेयर अबाउट दैट, है ना, बिकॉज ये सॉइल में रहते हैं, सॉइल खाते हैं। Yes. The call got disconnected, don't know. Okay, so I was telling कि earthworms को friends of the farmers बोलते हैं because they live in the soil, they feed on the soil, and इनका soil में जितना भी organic matter है वो partially digest होकर they excrete it out, okay, so whatever they excrete is a highly nutritious substance for the plants to grow, उसको वर्मी कास्टिंग्स करके बोलते हैं, ओके, तो अर्थवर्म्स को यूज करके वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं एंड प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है, एंड एट द सेम टाइम दे हैव अ सिलिंड्रिकल बॉडी, तो जब वो सॉइल में बरो करते हैं ना तो सॉइल में से हवा अच्छे से पास होते हैं, पानी का भी पास होना बहुत अच्छा होता है, तो इट इज गुड फॉर द मूवमेंट एंड द फिजिकल टेक्सचर ऑफ द सॉइल, तो अर्थवर्म्स हैव गॉट वेरी गुड प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ये अर्थवर्म्स का ही है, तो दिस इज द एंटीरियर पोर्शन, एंड यू कैन सी अर्थवर्म का हार्ट है, देखो यहाँ पर, ओके, एंड दे हैव दिस सेगमेंट्स ऑन द बॉडी, ओके, जिसमें प्रॉपर सीलोम भी है, अभी इसके आगे सब कुछ सीलोमेट है, एडवांस्ड वंस, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर देयर, नेफ्रीडिया करके, एंड इनके बॉडी के सेगमेंट्स के ऊपर ध्यान से देखो, यू कैन सी द स्मॉल पोल्स, होल्स दिख रहे हैं, पेयर ऑफ ब्रिसल्स करके लिखा हुआ है, उसको स्पाइरैकल्स करके बोलते हैं, दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसको स्पाइरैकल्स करके बोलते हैं, and in the same earthworm you are able to see testes and the sperm sacs which are the male reproductive organs, and ovary with the oviduct is the female reproductive organ, इसलिए इनको hermaphrodite या bisexual बोलते हैं, so in the same animal you are able to see both of them,
ठीक है, ये देखो, दिस इज अनदर एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड एज नीरिस, एनिलिडा का दूसरा एग्जांपल है ये। एंड नीरिस में देखो, यू कैन सी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे पैर जैसे। तो एनिलिडा में यू कैन नॉट टॉक अबाउट लोकोमोशन एज अ कॉमन पॉइंट, सम ऑफ देम आर इमोबाइल, जैसे ये हैं, ये पता होगा लीच, लीच क्या करते हैं? काटते हैं और वहां से ब्लड सक करते हैं। यस, स्किन में से ब्लड सक ब्लड करते हैं, सक अगर करते स्किन में हैं। आए तो। यस, तो कभी फॉरेस्ट एरिया में अगर चलते गए तो कब लीच अपने शरीर पे डॉक्टर्स चिपक भी गया, यूज करते हैं ना लीच डॉक्टर्स को। ऑल्सो यूज, बिकॉज ये क्लॉटेड ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको निकालने में काम आता है, तो एकदम स्किन से चिपक जाते हैं। तो इट्स अ पैरासाइट, लीच बोलते हैं उसको। अर्थवर्म एज आई सेड, तो लीच का लोकोमोशन नहीं बट होता, ये मतलब बहुत कम ही पॉइजन नहीं लीक लोकोमोशन, करता। नॉट कंप्लीटली पॉइजनस, बट बहुत ज्यादा रहेगा तो पॉइजनस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर एक आध दो कभी स्किन में चिपक गया तो इट कैन बी इजिली रिमूव्ड, सॉल्ट डाल के भी निकाल सकते हो उसको, कभी कभी स्किन में एकदम चिपक जाते हैं। ओके, अर्थवर्म इज नॉट अ पैरासाइट, इट्स अ फ्री लिविंग एनिमल। एंड नीरिस जो है ये भी फ्री लिविंग है, सॉइल में मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा। तो नीरिस कैन मूव ऑन इट्स ओन, इसमें पैरापोडिया रहता है, देखो ये जो पैर जैसे स्ट्रक्चर है उसको पैरापोडिया बोलते हैं। बट अर्थवर्म एंड लीच डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, दे मूव विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलर बॉडी मसल्स। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू राइट अबाउट एनिलिडा, ये रिंग के बारे में लिखना है, सेगमेंट्स के बारे में लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू राइट। एंड नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। Have you understood about Annelida, everyone? Okay, no doubt. So time is up. We will stop here for today. Annelida तक हो चुका है. Next time we will continue with phylum Arthropoda, because Arthropoda एक बड़ा phylum है. Yeah, बोलो. अर्थवर्म को एक जगह से ऐसे स्टॉप किया तो वो दूसरे जगह से साइड से क्यों चलने लगता है? दूसरी जगह से मतलब अर्थवर्म रहता है, उसको अगर हम राइट साइड से उसका वे ब्लॉक करेंगे तो वो दूसरे साइड से चलने लगता है। मतलब ऐसा क्यों होता है? like a local train you're telling कि आगे नहीं तो पीछे. हाँ See, हाँ, it मैं anyways बचपन also, में खेलती थी, ऐसे करती थी और पैर से ब्लॉक करती थी और अरे फिर वो दूसरे बाजू से ऐसे चलने परेशान नहीं करने का जानवरों को. See, no problem. See, earthworms जो है ना, छोटी थी तभी I मैं। know, yeah. Earthworms have circular body muscles. तो इसलिए वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बट हमेशा वो उल्टे डायरेक्शन में ज्यादा नहीं जाएगा। उसको जब एक साइड से अगर ब्लॉकेज आ जाता है वो थोड़ा पीछे आता है, बट देन अगेन इट मूव्स थ्रू द एंटीरियर साइड, बिकॉज उसका एंटीरियर साइड से ही मूवमेंट होगा ना, वो उल्टा ही चलते रहेगा तो नहीं चलेगा उसको। उसके पास एक मैकेनिज्म है सर्कुलर बॉडी मसल से, इसलिए थोड़ा टाइम तक उल्टा आ सकते हैं, बट देन अगेन इट विल टेक द नॉर्मल डायरेक्शन। ओके, और पता चलेगा क्या क्या मस्ती की है एनिमल्स के साथ. ओके, एनी अदर डाउट्स? Everyone else has understood everything? Sir, Yeah, बोलो. sir, is unisexual and bisexual one and the same thing? No, यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल एंड फीमेल एनिमल्स आर टेक्स्ट बुक में ये सेपरेट. यूनिसेक्सुअल दिया है. कौन सा अर्थवर्म? हाँ, एनिलिडिया का. नहीं, एनिलिडा में इट इज बाइसेक्सुअल या सीन पिक्चर. hermaphrodite और unisexual. अच्छा, वैसा दिया है तो इसका These मतलब है animals इसमें are नहीं, either तो दैट मींस आइदर दे आर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल डिपेंडिंग अपॉन द एनिमल. अब नीरिस अगर बोलते थे वो यूनिसेक्सुअल है, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है. इट डजंट मीन द मीनिंग इज द सेम. हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल एंड फीमेल आर सेपरेट. ओके, एनी अदर क्वेरी? Everyone else has understood everything properly? Okay, कैसा लग रहा है एनिमल क्लासिफिकेशन सबको? How is the अच्छा लग lesson? रहा है। अच्छा है ना? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें। आएंगे ही ना, you are learning बट biology. इंटरेस्टिंग है। Yes, it is interesting.
अच्छा है लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स है, मैंने डोंट सब लुक एट द क्वांटिटी, लुक एट द क्वालिटी। ओके, एंड आगे जो हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जाएंगे तो थिंग्स विल अच्छा बिकम है। मोर इमेजिनेबल ऑल्सो। अभी ये सर इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमने कभी देखे नहीं ना ज्यादा, तो दैट्स व्हाई इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू फिगर आउट, बट यू विल अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। इसलिए मैं जितना हो सके फोटोज वगैरह दिखा रहा हूँ, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो यू हैव टू रिमेंबर देम। ठीक है, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक नाउ। एंड जैसे मैंने बताया था, संडे यू आर राइटिंग अ टेस्ट ऑन लाइफ प्रोसेस 2 फ्रॉम द बिगिनिंग टिल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्रिपेयर करो अच्छा से, एंड एवरीबडी शुड बी राइटिंग दैट, एंड बाय टुडे और टुमारो नाइट आई विल सेंड मैंने यू द अभी करेक्टेड पेपर्स ऑफ द प्रीवियस वन। बोलो। अभी के अभी 5-6 पेजेस लिख डाले, वेरी गुड। And सारे पॉइंट्स लिख this is रही। actually a very good point. I will advise कि everyone should start following that, कि जैसे जैसे कोई explanation चलता है, lecture चलता है ना, make a habit of writing the running notes। जो भी important points जो भी लगता है ना, उसको लिखो। इससे फायदा क्या होगा कि when you write with your own hands, you will remember it more। This I advise to every student, college level पर भी मैं सबको हमेशा बोलता हूँ। ओके, बिकॉज सी लेक्चर सुनते सुनते लिखने में क्या हो जाता है, यू टेंड टू रिकलेक्ट एवरीथिंग, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। ओके, मेक इट अ हैबिट। एनीवेज यू आर गोइंग टू गेट ऑल द मटेरियल, टेक्स्ट बुक तो है ही तुम लोग के पास, नोट्स मिल रहा है, सब कुछ है, वो तो पढ़ना ही है, बट साथ में अपना नोट्स बनाने का सिस्टम शुरू करो, दैट विल रियली हेल्प। आई एम टेलिंग। ठीक है, ओके, सो मिलता है अभी नेक्स्ट वीक, एंड कम प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट एवरीवन। ठीक है, संडे को 11 o'clock इन द मॉर्निंग, सेम टाइम। ओके, चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय।